نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر روز یہ ایک تسبیح دل میں پڑھتے رہا کرو، خود کو اور ساتھ اپنے بچوں کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ محترم ناظرین، صرف یہ ایک تسبیح پڑھ کر دیکھ لو، آج ہر تقدیر بدل جائے گی۔ آج اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ آج جو بیٹی پڑھے گی، جو ماں پڑھے گی، جو بہن پڑھے گی، جس مقصد کے لیے پڑھے گی، رب کریم ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیں گے۔ پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، انشاءاللہ من پسند نوکری مانگو گے مل جائے گی۔ ناظرین، آج وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے کئی ہفتوں، کئی دنوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ مانگتے چلے جاؤ گے، فرشتے رب کے حکم سے آپ کو دیتے چلے جائیں گے۔ آپ من پسند نوکری مانگو گے مل جائے گی، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو۔ آپ قرض جیسی دلدل سے بچنا چاہتے ہو، قرض داروں نے جینا حرام کر رکھا ہے، قرض سے ہمیشہ کی نجات کے لیے پڑھ لو۔ آج قرض جیسی دلدل سے مکمل نجات نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ والو، آج جو کوئی پریشان ہے، بیمار ہے، لاچار ہے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، اپنی لا علاج بیماری کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، گھر میں سکون اور برکت کے لیے پڑھ لو۔ اللہ والو، بدقسمت ہے وہ بندہ جو اس تسبیح کو پڑھ کر رب کریم سے اپنی حاجت کو پورا نہ کروائے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے کو، مانگنے والے کو فوری دے دیا جاتا ہے۔ اللہ والو، آپ بہت سے وظیفے پڑھتے ہوں گے، لیکن جو تسبیح، جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجیے، آپ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ رب کی ذات پڑھنے والے پر اتنا کرم فرمائے گی، اتنی نعمتوں کی برسات فرمائے گی، اتنی کامیابی، عروج اور ترقی سے نوازے گی کہ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا تھا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میرا مقصد آپ تک وہ اعمال، وہ وظائف لے کر آنا ہے جن کا کوئی وجود ہے، جن کو پڑھنے سے بے شمار فائدے ہوتے ہیں، جن کو لاکھوں لوگوں نے آزمایا اور اپنی حاجت کو پورا کروایا۔ میرا مقصد بنے بنائے وظیفے نہیں بتانا، وہ وظائف لے کر آنا ہے جو واقعی وجود رکھتے ہیں۔ اللہ والو، آج اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے، اگر اب نہ مانگو گے تو کب مانگو گے؟ یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے، چند منٹ کی تسبیح ہے، میرے سمجھانے میں، میرے بتانے میں وقت لگے گا، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ آپ سے کسی بھی قسم کی غلطی کوتاہی ہو جائے تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں، جو کوئی دکھیاری ہے، پریشان ہے، تنگ دست ہے، آج رب کی ذات بندے کی نہ شکل کو دیکھتی ہے، نہ اعمال کو دیکھتی ہے، نسلوں کو رنگ دیتی ہے۔ جس گھر میں یہ ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اس وظیفے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ وظیفہ رات ہونے سے پہلے ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ جو بندہ یہ وظیفہ، یہ تسبیح پڑھے گا، مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی۔ وقت ضائع کیے بغیر آج کے خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ چاہے نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ درود پاک پڑھنے سے پہلے ایک بات توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ ابھی تک آپ نے ویڈیو اسکپ کر کے کاٹ کر دیکھی ہو، لیکن اب وظیفے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ آپ کی چھوٹی سی کوتاہی، لاپرواہی وظیفہ ضائع ہو سکتا ہے، اس لیے ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے، بغیر کاٹے دیکھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم ہے، کوئی اہم حصہ چھوٹ جائے تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह वालों, दुरूद पाक के मुकम्मल होते ही आपने बगैर किसी से बात किए फौरी तौर पर अपने मकसद की नीयत करनी है। आपको रब्बे करीम से जो भी चाहिए ज़िद करके मांगिएगा, और 1, 2 या 3 नहीं, सैकड़ों हाजत की लिस्ट बनाकर भी बैठोगे तो आपकी हर हाजत ज़रूर पूरी होगी। शर्त यह है कि मकसद की नीयत करके बैठना है, क्योंकि आमाल का दारोमदार नीयतों पर है, और रब्बे करीम से जिस हाजत को लेकर बैठोगे वो मिलकर रहेगी। इसलिए आप थोड़ा ना मांगना, ये ना हो कि बाद में कहो कि काश ये भी मांग लिया होता। आप जो भी मांगोगे मिल जाएगा। मकसद की नियत करते ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, एक बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ कर वजीफे का आगाज़ करना है और अपनी आँखों को बंद कर लेना है। यूँ महसूस कीजिए दुनिया से आपका ताल्लुक़ ख़त्म, ये वक्त कबूलियत का है। हर लम्हा नेमतें, रहमतें, बरकतें बारिश की तरह बरस रही हैं। आपने आंखों को बंद करते हुए पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो सिर्फ 1 मिनट की तस्बीह है। ये तस्बीह आपकी तकदीर का फैसला कर देगी। ये तस्बीह घर के हालात को बदल देगी। ये तस्बीह बेबरकती, बेसुकूनी का खात्मा कर देगी। हर कोई चाहता है कि गैब से मदद हो जाए। हर कोई चाहता है कि इसके पास गाड़ी, बंगला, घर, हर शे हो, आपको मिल जाएगी। आपने पहले नंबर पर जो 1 मिनट की तस्बीह पढ़नी है वो रब्बे करीम के 2 नामों की तस्बीह है। वो नाम क्या है? आप नाम सुनते ही होश में आ जाएंगे कि इस तस्बीह की कितनी अहमियत है। इन नामों को सुनते ही आपको पता चल जाएगा। सिर्फ 1 मिनट की तस्बीह या गनियो या मुगनियो की पढ़ते ही आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। जो अल्लाह वाले हैं वो जानते हैं कि इस तस्बीह की कदर व कीमत क्या है, इसकी फजीलत व बरकत क्या है। अल्लाह वालों, या गनियो या मुगनियो रब्बे करीम का वो नाम है जो अर्श पर बैठे रब को राज़ी करता है। अगर कोई भिखारी है, फ़कीर, तंग दस्त, दुखियारी, परेशान हाल, जो समझता है कि वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, जो समझता है कि इसकी दुआएं कभी कबूल ही नहीं हो सकती, जो समझता है कि गुर्बत मेरा मुकद्दर हो चुकी है, वो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ इस तस्बीह को पढ़कर देखे, मेरा रब फ़कीरों को गनी कर देगा, मांगने वालों को बांटने वाला बना देगा। इस अमल से अगर कोई रब्बे करीम से 1 लाख मांगेगा, मेरा रब 10 लाख से नवाजेगा। तो फिर क्यों ना रब्बे करीम से इतना मांगा जाए कि हमारे खजाने भर जाए। आपने या गनियो या मुगनी को पढ़ना है, और तवज्जो कीजिएगा, अब या गनियो या मुगनियो को आम तस्बीह की तरह नहीं पढ़ना कि तस्बीह का दाना पे दाने फेंको। अगर आप चाहते हैं कि इस एक तस्बीह जो सिर्फ 1 मिनट में मुकम्मल हो जाएगी, एक तस्बीह पढ़कर मगरिब से पहले कामयाब हो जाए, हर मकसद में कामयाबी पाना चाहते हो, मगरिब से पहले अपने घर के हालात को बदलना चाहते हो, तो आपने या गनियो या मुगनियो को इस मोहब्बत के साथ पढ़ना है, इस अकीदत के साथ पढ़ना है, इस तवज्जो और ध्यान के साथ पढ़ना है कि जब जब आपकी ज़बान से या गनियो या मुगनियो निकल रहा हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब्बे करीम से मांगते चले जाएं। मैं यकीन से कहती हूँ कि रब्बे करीम आपको नवाजता चला जाएगा। हो सके तो तस्बीह के दानों पर पढ़ लो, हाथ की उंगलियों पर पढ़ लो। ये एक तस्बीह 100 दानों की करनी है, ना कम पढ़ना है ना ज़्यादा पढ़ना है। 100 का मतलब सिर्फ 100 बार पढ़ना है, और 100 बार या गनियो या मुगनी पढ़ते दौरान जो जो दिल में आता जाएगा वो मिल जाएगा। इसलिए ये एक तस्बीह पढ़ते दौरान जितना ज़्यादा हो सकता है रब्बे करीम से मांगते चले जाना। एक दिन में करोड़पति बना देने वाला अमल आपके हवाले कर दिया। देखते हैं कौन खुशकिस्मत है जो ये ख़ास तस्बीह पढ़ेगा, वो माला माल हो जाएगा। या गनियो या मुगनी 1 बार हो गया, या गनियो या मुगनी 2 बार हो गया, या गनियो या मुगनियो 3 बार हो गया। इस तरह से आपने 100 दानों की एक तस्बीह पढ़ना है। जैसे ये तस्बीह मुकम्मल हो जाए तो फौरी तौर पर आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो एक ऐसा अमल है जिसे ख़ास दौलत का वजीफ़ा कहा जाता है। अल्लाह वालों, जिस मौजूदा निज़ाम में हम रह रहे हैं, पैसा बहुत ज़रूरी है। पैसे के बगैर ना सुकून है, ना अखराजात पूरे होते हैं, ना ख्वाहिशात पूरी होती हैं। और आज अपनी तमाम बहनों भाइयों के लिए एक ऐसा वजीफ़ा
वजीफ़ा लेकर आई हूँ जो वाकई आपकी तकदीर के बंद ताले खोल देगा। अगर आपके कारोबार में रुकावट है, आपके कारोबार में बंदिश है, बेटी के रिश्तों में बंदिश है, चलता कारोबार बंद हो रहा है, आपके घर के हालात इतने ख़राब हैं कि हर काम होते होते रह जाता है, आपको लगता है कि ये काम बना हुआ है लेकिन आपके हाथों से निकल जाता है। अगर आपके साथ ऐसे हालात हैं तो आपने एक तस्बीह या गनियो या मुगनी पढ़ते ही दूसरे नंबर पर सूरह कौसर का वजीफ़ा पढ़ना है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अब्तर। आपने सूरह कौसर पढ़नी है। कितनी बार पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, एक एक चीज़ बताऊंगी। सूरह कौसर को सुनते ही आपको अंदाज़ा हो गया है कि इस अमल की कदर व कीमत क्या है। या गनियो या मुगनियो के बाद सूरह कौसर पढ़ने की ताकत हर कोई जानता है और आपको पता चल गया है कि ये अमल, ये वजीफ़ा, ये ख़ास तस्बीह मगरिब से पहले आपकी हर हाजत को वाकई पूरा कर देगी इंशाअल्लाह। अल्लाह वालों, ये वजीफ़ा हर किसी के नसीब में नहीं आएगा। जिसकी तकदीर बदलनी है, जिसको रब ने झोलियाँ भर भर कर नवाजना है, वही ये वजीफ़ा पढ़ेगा। आपने सूरह कौसर को सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। एक एक चीज़, एक एक नुक्ता क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि अल्लाह वालों वज़ाइफ हर कोई बताता है, पढ़ने का तरीका कोई नहीं बताता। अगर आपके पढ़ने में छोटी सी भी गलती होगी तो ये वजीफ़ा ज़ाया हो जाएगा। तो फिर क्यों ना ये वजीफ़ा दिलचस्पी, इत्मीनान, तवज्जो के साथ पढ़ लिया जाए। अल्लाह वालों, मेरा आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप वाकई इस वजीफ़े से अपनी हाजत को पूरा कर लेंगे। बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद दूसरे नंबर पर सूरह कौसर को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, एक एक नुक्ता, एक एक चीज़ बता चुकी हूँ। अब सूरह कौसर पढ़ते ही आखिरी वजीफ़ा, आज का आखिरी और सबसे ताकतवर वजीफ़ा, जिसके बगैर ये वजीफ़ा नामुकम्मल है। नाजरीन, आपने बहुत से वज़ाइफ पढ़े होंगे लेकिन आज ये वजीफ़ा पढ़कर आप मुझे दुआएं दोगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई वजीफ़ा बताया था। जिन लोगों ने वजीफ़ा पढ़ा वो मुझे दरख्वास्त कर रहे थे, ये वजीफ़ा बताओ। आप भी दरख्वास्त करोगे कि किसी ने वजीफ़ा बताया था। अल्लाह वालों, आखिरी वजीफ़ा जो पढ़ना है वो वजीफ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का वजीफ़ा है। तवज्जो कीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बिल आलमीन का वजीफ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह, रब का शुक्र है, रब्बुल आलमीन, रब तेरा शुक्र अदा करती हूँ और मेरा रब शुक्र करने वाले को पसंद करता है। शुक्र करने वाले का रिस्क 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। आप रब से जो मांगोगे, सूरह कौसर से बंदिशें, रुकावटें टूट जाएंगी और अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बुल आलमीन से मांगी गई हर हाजत 70 गुना ज़्यादा नवाजी जाएगी। तीसरे नंबर पर अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन को सिर्फ 70 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, तवज्जो कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन एक बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन 3 बार हो गया। इस तरह से आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन को हाथ की उंगलियों पर सिर्फ और सिर्फ 70 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा तो सिर्फ और सिर्फ 70 बार अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन को बताए गए तरीके से पढ़ने वाले पर फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर रिस्क और दौलत के खजाने लेकर आएंगे। मेरा रब छप्पर फाड़ कर नवाजेगा और इतना नवाजेगा कि आपके खजाने छोटे पड़ जाएंगे। ये जो आज गाड़ियाँ, बंगले, कोठियाँ, कारें लेकर फिरते हैं, इनको भी रब ने दिया है तो फिर हमें क्यों नहीं दे सकता। सिर्फ एक शर्त है, बताए गए तरीके से वजीफ़ा पढ़ना है। वीडियो में एक एक नुक्ता बहुत अहम है, आपने वीडियो स्किप की तो वजीफ़े का फ़ायदा ना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन 70 बार पढ़ते ही आखिर में इतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। फिर फौरी तौर पर दोनों हाथ उठाकर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कीजिए। जब तक दिल को सुकून ना मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कीजिए। जैसे ही दिल को सुकून मिले कि रब ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर जिद करके मांगे। मेरा रब 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। खुशकिस्मत है वो बंदा जो ये वजीफ़ा पढ़ेगा और आपकी ज़िंदगी में मुझे दुआएं देंगे। नाजरीन, अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।